सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ केंद्र तनन धमापालका हिंदू अफेचो जमा नाइंगा खुनसे गाने पी सेयटू अठैमा सुचिमी जे खानाओ साटेमा फिटे द्वे अधिकारी जी म्या फिटे जनरो माननीय बजरंगलाल शर्मा जी श्री वाडला वगाइया जी श्री RS मुकुंदन जी श्री अशोक क्षेत्रपाल जी दोमा नेया जुबेचा बाया लेजा स्वा मिटा याखां बारे श्रीमती अलका सुधीर इनामदार जी मा सेमिन पोदु चाबेबु मिटा याखां बारे खम्या संघ उद्देश्य आ रमा संघ छ ध्वज प्रणाम 1 2 3 पंचशील पानादि पाटा वेराम नित्य खापडम तमाडियामि आरेना दाना वेराम नित्य खापडम तमाडियामि कामे तु मैसा सारा वेराम नित्य खापडम तमाडियामि मुतावारा वेराम नित्य खापडम तमाडियामि तुरा मेराया मैसाप माराठाना वेराम नित्य खापडम तमाडियामि जय तु सर्वमंगलम सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ तनन तना धमापालका हिंदू अफेचो जमा नाइंगा खुनसे गाने पी सेयटू अठैमा सुचिमी जे खाना दुटिया बाइगो अखाना मु अफे चनो सुनील कुमार मा सांजो तो मा फे बारे जने अखाना असीजे को असीजे चनरो सटया फे सांजो तो मा फे बारे असीजे टे या भगवा अलांदो लेठू जिने नाबा तिला जुसो जे पीरे नाव मा असीजे ने या मैसे जे असीजे फे बारे खम्या मैसेशन असीजे को चनरो तनन धमापालका हिंदू अफेचो टोयबे मुटी श्री बी मोहन राव जी मा सांजो पे बाया पंचा आबारे खम्या तनन धमा पालका हिंदू अफेचो म्यांमा नाइंगा 95 နှစ်ပြည့်စိန်ရတုအထိတ်မှတ်အခမ်းအနားတွင်အဓိကာရီများနဲ့ကျွန်တော်
မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေးမောင်းမှာအလယ်ဆုံးမှာထိုင်နေတာကတော့မာနနီယရှရီဝါဒလာဘာဂယာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာဂယာကြီးသည်အာန္ဒရပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ဇာတိဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ဘဝကတည်းကဆွမ်ဆေဝါဆရာကြီးသည် BSc ဘွဲ့ကိုရရှိထားသူဖြစ်သည်1980ခုနှစ်မှစ၍သာသနာပြုဆရာပရချာရက်အဖြစ်လူမှုပရဟိတစသည်တို့ကိုတာဝန်အသီးသီးထမ်းဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အာန္ဒရပရဒေ့ရှ်မှာပရန်ပရချာရက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတွင်စဟချေတရပရချာရက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရှာရီရစ်ပရမုခတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအထွေထွေတွဲဘက်အတွင်းမှုကိုလည်းတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစံဗဟိုကော်မတီအမှုဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ယခုဆိုဆရာကြီးရဲ့ဌာနေကဂူဟာတီမြို့အာဆမ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်နေတာကတော့မာနနီယရှရီဘဂျရန်လာရှ်မာကြီးဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍနာဓမ္မပါလကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမာနနီယဘဂျရန်လာရှ်မာကြီးခေါ်တီရီပြန်ချီဦးမောင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်တဏ္ဍနာဓမ္မပါလကရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမာနနီယရှရီအရှုပ်ခြေတရပါကြီးခေါ်ဦးအောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ညာဘက်မှာဆိုရင်श्श्रीमती अलका सुधीर इनामदार जीဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးသိပ္ပံဘွဲ့တင်ချာယူပဗေဒဘွဲ့ရရှိပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအသင်းတွင်ခိုကစားသမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကရာရှထစေဝီကာစမိတိဟိန္ဒူအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွင်စေဝီကာတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်မှာကလေးကတာဝန်များအဖြစ်မုခရှိကကာဒေတာဆိုင်ရာအထွေထွေအတွင်းမူပြည်နယ်ကာယမူတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းမူတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်စေဗီကာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လည်းလမ်းညွှန်မှုပေးသောတာဝန်ရှိတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်တွင်စက်တင်ဘာလတွင်ဆွာမီဘီဝေကာနန္ဒရဲ့ချီကာဂိုမေကွန်းတွင်နှစ်150ပြည့်ကမ္ဘာဟိန္ဒူညီလာခံတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးမေကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိသားစုရှိတော်လဲစမတိတာဝန်ကိုအမြဲလိုပရဝတ်ခရီးထွက်လေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်တဏ္ဍနာဓမ္မပါလကဟိန္ဒူအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့85နှစ်ပြည့်စင်ရတုအထိမ်းအမှတ်ရဲ့ကျင်းပရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်श्री RS मुकुंदन जी कोဦးဇော်မိုးအောင်တရားသူဓမ္မဇောတိကဒေါတိတရရှိခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာវិഭാဂတွေဇုံအဖြစ်6ခုရှိပါတယ်အဲវិഭാဂရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်တို့ဥတရီវិഭാဂမြောက်ပိုင်းဇုံဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်माननीय विजय प्रकाश गुप्ता जी मध्य विभाग अलेबाइंजो ओकटा माननीय श्री ओम प्रकाश जी दू ओकटा माननीय सह संचालक श्री देव पूजन जी टाउमाइंजो ओकटा माननीय श्री उमाउते श्री एम पार्थिपन जी के बारे दू ओकटा माननीय श्री सरस गुप्ता जी के बारे अशे टाउमाइंजो दक्षिण पूर्व श्री मानिक्यम जी को के बारे अनाव टाउमाइंजो दक्षिण पश्चिम माननीय श्री देवनाथ जी को के बारे सलाबीरो चनोरो सस अफसीတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းမှာဗုဒ္ဓဝင်ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမောင်မောင်လွင်ခေါ်စရီအန်အပါဦးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူဓမ္မတင်ချပို့ချရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစရီတီကေပေါ်ကြီးခေါ်ဦးအောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒုဥက္ကဋ္ဌစရီ KS မူတူကြီးခေါ်ဦးကျော်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်Jana Kalyana Tin, Jan Kalyan Seva Samiti, Okada Shri Nandalal Ji ko Uaw Phipare. Du Okada Shri Sonapati Ji Phipare. Hindu Sevika Samiti, Srimati Nita Ben Verma Ji ko Don Nita Okada Phipare. Du Okada Srimati Sushila Ji ko Dro Sui Mye Phipare. Hindu Lunge Mya Apwe HYS Hindu Youth Society တာဝန်ခံကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရှိပါတယ်။ Sri Sandeep Ji Sri Ronnie Chakravarti HFRG Hindu Family Relief Group Hindu မိသားစုများကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံနှစ်ဦးရှိပါတယ်။ Sri Rajesh Bharadwaji ကိုဦးကျော်တာဝန် Sri Nitesh Verma Ji စံရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရှရီ V ရှေခတ်ကြီးဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးရှရီ L စုဘရမဏီကြီးခေါ်ဦးမောင်သိန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်နံပါတ်3ရကျွန်တော်တို့85နှစ်ပြည့်စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ်မဂ္ဂဇင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမဂ္ဂဇင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်မာနနီယစံချလကश्री बजरंगलाल शर्मा जी श्री वारला वगैया जी श्री RS मुकुंदन जी माननीय सह संचालक श्री अशोक क्षेत्रपाल जी श्रीमती अलगा सुधीर इनामदार जी दोमा फुनली बेबाया लेजा स्वा पंचा आबारकन्या जनरो पुनः गाने भी अथेमा मगज़ीन फिर बारकन्याမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖွင့်လှစ်ပြသတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအိုးမလို့အော်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာအိုးအဓိကရီအဖွဲ့အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်လေးရစူပေါင်းစံတချင်းတီဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစံတချင်းကိုဆူစရီ S စတျာကြီးမှတီဆိုပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစူပေါင်းတချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနောက်ကကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုရပါမယ်धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए धर्म के लिए जिए समाज के लिए जी ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए ये धड़कने धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए पुण्य भूमि के लिए गर्व से सभी कहे हिंदू है हम एक है हिंदू है हम एक है स्नेह सूत्र में बंधे वेद भी अनेक है वेद भी अनेक है शुभ्र रंग की जटा सप्तरंग है लिए सप्तरंग है लिए
धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए ये दर्शनीय श्वास हो पुण्य भूमि के लिए पुण्य भूमि के लिए कोटि कोटि कंठ से विश्व धर्म गर्जना विश्व धर्म गर्जना नित्य सिद्ध शक्ति से पुण्य भू की अर्चना पुण्य भू की अर्चना संग शक्ति कलियुगे सुधा है धर्म के लिए सुधा है धर्म के लिए धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए ये दर्शनीय श्वास हो पुण्य भूमि के लिए पुण्य भूमि के लिए व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना समाज भक्ति भावना व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना जोड़ने की साधना दाव पर सभी लगे कर्म भूमि के लिए कर्म भूमि के लिए धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए ये दर्शनीय श्वास हो पुण्य भूमि के लिए पुण्य भूमि के लिए एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे असंख्य दीप जल रहे कौन लो बुझा सका आंधियों में जो जले आंधियों में जो जले तेज बुंज हम बदे तमस चीरते हुए धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए ये दर्शनीय श्वास हो पुण्य भूमि के लिए पुण्य भूमि के लिएဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်9အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်းကိုसनातन धर्म स्वयंसेवक संघ केंद्र माननीय संचालक श्री बजरंगलाल शर्मा जी मेंပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာपरम पवित्र भगवा ध्वज मंच पर उपस्थित श्री भागेया जी, अलकाताई जी, माननीय संघ चालक श्री अशोक खेत्रपाल जी, सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री मुखंदन जी, विभिन्न विभागों के संघ चालक जी, माननीय सह संघ चालक जी, नगर के संघ चालक सह संघ चालक जी, विभिन्न अनुसांगिक के अध्यक्ष कार्यवाह और पूरे भारतवर्ष म्यांमार देश के संचालिका कार्यवाहिका उपस्थित सभी कार्यकर्तागण स्वयंसेवक स्वयंसेविका माता भगिनी, आज
संघ के 75 वर्ष के पड़ाव में हम इकट्ठे हुए हैं। दीने हासो इन जनरो खुन से गाने म्याओ नो नेयाट फुमा जनो ना बिरो दी सीजन लेगो जनरो का दा लो नेया जिन फिट दी खुन से गानी खीजें माँ नो जनरो ब्लॉक खे आखे से ने डीलो चेंग जनरो डी माँ सोक्टुं तो नहीं आ रहा कुछ उन्होंने जोलो बारे दी संग म्यामा बीमा नो मंगल सेन जी का डॉक्टर मंगल सेन जी का लापिरो साटें बिरो सागे बारे नाउ राम प्रकाश धीर जी सुभाष जी यादव जी नौ बिरो रामेश्वर जी श्री भगवान जी सादीप्य नो दी महान पुरुष महान आत्मा ने महान कार्यकर्ता रहा नो खया खसे ने नो डी संघीय चक्र को डी थी आऊँ युला आजे डापियट राम प्रकाश धीर जी आ सोलुशे म्यामावी डापियट है मुझे माँ मुझे इंडिया तो आप पिरो नौ माँ म्यामा पी माँ प्यान ला पिरो माँ तू को टाउन पे रहे तो है बमा बीमा संग सुरा मशियु एरी हागो दीमा स्वयं सेवक दी सुपिरो शाखा साटे लोटे हागा ता इमटा मा नो ता खेखेरे हा सुरा प्योरा का तुरिया तपस्या नो तुरिया तमठा तुरिया तमाडी गोचनो अटू यू बिरो एरी लांसें ले गोचनो रोगा लाइक नामे सुरे दबोली ने दा योलू बारे मांडलिया साबिरो यांगोंठी राम प्रकाश धीर जी आ यांगोंठी ला में सरोशे यांगवा ने मीठी ला मा नहीं रहे एरी मा कार्यकर्ता रो ए मा नहीं रहे एरी गाने मा टसे कार्यकर्ता टुआ तुगो जियावारी ठी पोगी रहे जियावारी मा दबासे ये नहीं रहे एरी गाने मा टखु टखा चौड़गा म्यू को पूरे एरी गाने मा टखा बगो याव दे एरी गाने मा टखा यांगोंठी याव आ रहे नो बदलो अखे खेरी ने नो जहाँ दी लोंगांजी को जो नरो गाड़ी माँ साटें बिरो साउय खेजी फिर बारे ऐ लोगे सुभाष अहुआ जी आले नो नीन्या को ये प्रचारक जी फिर बिरो माँ चनोगाले राम प्रकाश जी धीर जी ने सुभाष जी ये लअमा नो नो बिरो चनो रामनिवास जी ये लअमा बे चनो ये विकास का दा फिर खेलू ना दीने दी अच्छे माँ चनो दिया ने प्योगुए या नहीं रहा अन्य से रोंगाले चनो माननीय श्री चनो माननीय वे प्योलू बारे भीमसेन जी नो माननीय श्री सुब्रमण्य जी नो तुरु ये ले ओमा नो डिलोबे म्यनिशे मा टाइम बिरो तुरु ये ओवाडा तुरु ये माजगा तुरु ये ले ओमा स्वयं सेवक टू अनिने नो संघ कार्य को कार्यकर्ता ने लोक पीरो माँ ढीलो अच्छे थी जनो जाऊ ला पीरो माँ दीने दाखम्यारू शे माँ नो संघ चालक फिर ने जनो टाउन यू पीरो लोक साउने रा फिर पारे नो दीप से दीप जले नो चनो गो एरुंगा अधिकारी जी रिया आशीर्वाद भी रहे खम्या संघ चालक जी फिर में खम्या संघ चालक जी ने आ याउते ने तुरु ये आशीर्वाद तुरु ये मेटा ना तुरु ये भावना लीने चनो को डी टाउन को पे आखेरा दा फिपारे चनो भवा मा स्वयं सेवक ये लोग फिटागा इमटामा चनो कूदो गाँव कूदो शीरे लोग चनो डा को यूंची बारे दी संग लोंगा कार्यकर्ता टू ने लो नहीं आ रहे हाँ बोले चनो रोगा चनो इमटामा डा को ना इमटामा गोयू बारे संगा बाफिलो चनो भवा मा लूदले नो शाखा बाफिलो लूदले नो चनो इंग्लिश लो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तिनानी ऑनलाइन तिनानी टेमेसोइले दा पीद्वारा बे दामे
အဲ့ဒါကပညာရတာနော်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ဒါမပြီးတော့ဘူးကဘာကြီးအေးချမ်းမှုဆိုတာကနော်ဉာဏ်လဲလိုတယ်ပညာကမှားတဲ့ဘက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှားကိုအမှန်ထင်တယ်မှန်တဲ့ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှန်တဲ့ဟာကြီးကလည်းသူကအမှားကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်နေရာကနော်ဉာဏ်ပဲဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ရဖို့ကကဘာပေါ်မှာဘယ်တက္ကသိုလ်မှာနော်ဘယ်ကျောင်းမှာနော်ဘယ်စာသင်ကျောင်းဘယ် online ကနေမှမရခဲ့ဘူးမရနိုင်ဘူးဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့သတိပိဋကသူ့ရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားနော်ကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာသိရတယ်လဲဆိုရင်အင်မတာမပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသိရတယ်နော်အဲ့ဒီပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရင်ရဲ့သားတဦးကလည်းနော်အင်မတာမသူကကျင့်စဉ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးမှနော်ဘုရားအဖြစ်ကိုဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုပဲရှာခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဘဂဝါဒဝတ်ကိုပရဏမ်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ကိုကာယလေ့ကျင့်ခန်းမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့မှဘောဓိနားထောင်မယ်ဂီတဆိုမယ်ချာချာလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟာလာအားလုံးထိုင်ပြီးတော့မှလုံမှတာလျင်နော်ဒီ process ကိုဖြတ်မှနော်ဒီဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကဉာဏ်ဆိုတာကဒါရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားပြီးတော့မှဒါတိလို့အင်မတန်မှပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်အမှားလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကကြတော့ဒါအမှားကဘယ်လို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝကကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာပထဝီမတ်တရနေတယ်ကျွန်တော်ကလကဘာနော်မင်္ဂလဂရတခြားဂရတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်ဟိုမှာခြေချတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဂရတစ်ခုပေါ်မှာခြေချပြီးတော့ဒါနေနေတာစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တက်ရှိတတ်တော်နဲ့နော်တခြားဟာအားလုံးကကျွန်တော်တို့က connected တွေပါဒါအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိန္ဒူရိရှိမုနီတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာကနော်ကဘာတစ်ခုလုံးနော်ရဲ့အေးချမ်းမှုကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ရှမ်းတိဝစုဒေဝကုတုမကံအဲ့လိုရှာပြီးတော့မှတတ်မှတ်ခဲ့တာကဒါဟိန္ဒူအိန္ဒိယတစ်ခုလုံးရဲ့လို့မဟုတ်စัจ java လာတစ်ခုလုံးရဲ့နော်ဟိုရှိနေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က connected တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိန္ဒူအားလုံးဒီနေ့ရှုရင်တစ်ခါလေသိမယ်ဆိုရင်မြင်မှုသလိုသိသလိုဘယ်တော့မှမြင်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတဦးနဲ့တဦးဒါအာတမချင်းဟာရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော်အတိတရားလေးပဲနော်ဒီအမှတ်ထားမှရှိတဲ့ဘုဒ္ဓိကပဲကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာကိုမြင်လို့ဒါပေမဲ့အာတမကတော့ဒါအတူတူပဲတော့ရိရှိမှုတွေကကဘာကိုအေးချမ်းဖို့ဘလောက်တပရှားတွေလုပ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးတော့မှသွားမယ် nature ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့ပဲပြောထားတယ် nature ရဲ့လုပ်ငန်းကတစ်ခုကိုသူကအခု100 1000သိဒီလိုပွားပြီးပေးလိုက်တာသူက ईश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें सूरज हमें रोशनी देता वायु हमेंအဲ့ဒီဟာလေးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဝေပေးပြီးတော့မှเนาะတကဘာလုံးကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ဝိಶ್ವဂုရုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဝိಶ್วကိုလမ်းပြနိုင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိန္ဒူလမ်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆွေဆွေတွေကမိသားစုအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကမာနမရှိဘူးအဲ့ဒီမာနမရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တခုပြောလို့တယ်ဗမာပြည်ကစာရေးဆရာပါရဂူကြီးเนาะသူကအိန္ဒိယရောက်တယ်အိန္ဒိယဘုံဘိမှာ သူစာအုပ်ရေးထားတယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကာရီကြီးနဲ့တွေ့ဖို့နော်ဘင်းလေးကြီးနဲ့မာနနီကဘင်းလေးကြီးနဲ့တွေ့ဖို့သူကသွားတယ်
ဘူရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တူလာတယ်သူ့ကိုကြိုတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာရလက်သွားမယ်မာနေနဲ့ဘင်းနေကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်လိုက်ခဲ့ပါကာရလက်ခေါ်သွားတယ်ခါမှထိုင်ခိုင်းတယ်သူလက်ဖေးနွားနိုးတွေဘာတွေတိုက်တယ်သူကလောတယ်ကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ဘာဘင်းနေကြီးနဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့မှရေမိုးချိုးအားလုံးပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ဘင်းနေကြီးပါရထိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနော်စာရေးဆရာပါလူကတော်တော်ကိုအော်ပြီးတော့မှဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှမာနမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့မှမာနလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးပါဆိုတာကိုလည်းသူကဒါပြောသွားတာဒါဖြစ်တယ်ဆွေမစေဝကတရားလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကာရီကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့တခါတော့အိန္ဒိယမှာရှေ့နေတူနော်သူ့ကိုဆွေမစေဝကစံကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုဟာလာပြောလိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်ရက္ခဘန္ဒန်မှာဒါခေါ်ခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားတယ်သွားပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးတော့မှနော်အထက်မှာဝင်ဖို့မပေးဘူးကာရကတတယောက်ဆွမ်ဆုတ်တယောက်ကဘယ်လိုနိষ্ঠাနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတာရကဒါပြောသွားတယ်နော်ဆိုတော့သူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တွေးကျင်တယ်ရှင်းနေကြီးနဲ့ဘာကိစ္စလဲဂျာဘန္ဒန်မှာလာဖို့ဖိတ်ထားတယ်အေးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်လာတယ်နောက်တစ်ရက်လာတယ်နောက်တစ်ရက်လာတော့အထဲမှာရှင်းနေကြီးကဘာလဲဆိုတော့ခေါ်ပြီးမေးလိုက်တော့မှနော်ကျွန်တော်ကိုတောင်းဖိထားတယ်ခင်ဗျရက္ခဘန္ဒန်ပွဲတော်မှာလာကိုလာခဲ့ပါဆိုကောင်းပြီလာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီရက္ခဘန္ဒန်ပွဲကိုသူတက်ရောက်ခဲ့တယ်နော်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့မှစံကမာထိုင်ပြီးတော့အောက်မှာထိုင်ရတယ်နော်သူ့ရဲ့စနစ်သူ့ရဲ့ပद्धतिနဲ့တွားတဲ့ပုံမှာအင်မတာမဒီနှလုံးသားအာတမာရဲ့ကနေပြီးတော့မှသူကရူပပြောင်းသွားတယ်ရူပန္တရံဖြစ်သွားတယ်ရူပန္တရံဖြစ်သွားတာမှာတဖြည်းဖြည်းဆွေမစေဝကာရကတာသူ့ရဲ့ဒီကာရီတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီရဲ့ပြည်နယ်ကစံကြလန်ကြီးအထိကျွန်တော်ကဒါဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှာခါသွားဖို့ကအင်မတာမအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်95နှစ်ထဲမှာတော့ရောက်လာပြီနော် deep se deep ကြလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်မှာအနှစ်တရာပြည့်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆင့်ကမ်းမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှာခါကိုမှန်သွားရမယ်ရှာခါသွားမှလည်းတိမှာဥပမာအဖြစ်တရားစားတယ်ချိုတယ်အဲ့ဒီချိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဒါမပြောနိုင်ဘူးတရားစားမှပဲသိမှာနော်တရားဆိုပါတယ်ပြောရင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲစံလုံငန်းကိုနော်ဒီသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရှာခါရဲ့ကာရကရမမှာတွားမှသာလျင်ဒါစံအကြောင်းကိုဒါသိဖို့လိုတယ်နောက်လာမဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့နော်အနှစ်တရာကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဒီဘူရာတစ်ခုကိုပေါ့စံကရှက်တိကလို့ယူခဲ့ဒါအနှစ်90တို့85တို့အနှစ်100တို့ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီလိုစုပြီးတော့မှနော်ဒါပွဲမဟုတ်ဒါ work ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတင်ရတယ်အားလုံးကဒါတင်နန်းတစ်ခုပဲပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဆိုတဲ့ပွဲမဟုတ်တင်နန်းတစ်ခုမှလာပြီးတော့အတူတူလေပြီးတော့စံလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေရတာကပျော်လို့တာပွဲဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါပြောလို့ရတယ်နော်အမှန်ကတော့ဒါပွဲမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဂုရုဒက္ခဏတစ်နှစ်မှတစ်ခါပေးတယ်နော်အဲ့ဒီဂုရုဒက္ခဏကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါတခုခုဖွဲ့စည်းဖို့တခုခုလဲပတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆွေယမ်စေဝကရဲ့ဂုရုဒက္ခဏကနော်စက္ကန့်ပိုင်းမှာပေးရတယ်पल गुरु दक्षिणा होती है गुरु दक्षिणा एक राशि पर डिपेंड नहीं है ये भावना से एक कदम चल करके विश्व कल्याण के लिए और जो अपना कार्य करना है ना विश्व धर्म के लिए कार्य करना है संघ का कार्य करना है ना उसी के चलते हुए ये पल जो गुरु दक्षिणा करनी है वो एक स्वयंसेवक का
कर्तव्य होता है। तो आने वाले समय में आज के बाद हम संघ के कार्यक्रम में डूबें, उसके अंदर में हम अपने आप को डूबें। बीज जब जमीन में रहता है और पेड़ उगता है तो वो बीज नहीं रहता, अरे अति मशीरो रूपांतरण हो गया, एक बीज से अनेक बीज होंगे, ऐसे ही विश्व कल्याण फैलेगा दुनिया के अंदर में। तो हम एक संकल्प लें, चलो तांडिंग डाटा छा में दिग्नी आशा भी रो न, चलो संग लोंगा समाज लोंगांगो चनोरो नीराय लुक द्वामा प्योई ने चनो निगोंग छोबारे आलो नमस्ते। असीदें छावया अमाज़ा प्योजा जिन फिर बारे ये अमाज़ा प्योजा जिन को राष्ट्र सेविका समिति इंडिया नाइगा ई टोएबे टोएमू श्रीमती अलका सुधीर इनामदार जी मा प्योजा पे बाया लेजा स्वा पंचा आवार खम्या हिंदी लो प्योजा पे मा फिर रह जाओ म्यामा बादा प्यां को श्रीमती सत्यवती जी खो दो जिमालोई मा बादा प्यांचा पे वो लेजा स्वा मिटाया खम्बार खम्या। परम पूज्य भगवाध्वज, मंच पर आसीन, व्यासपीठ पर आसीन सभी मान्यवर अधिकारीगण, व्यासपीठ के सामने बैठे हुए सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक तथा सेविका भगिनी, आरंभ में क्षमा प्रार्थी हूँ क्यों पहली बार यहाँ आई हूँ और बर्मी भाषा में बात करना जानती नहीं हूँ। हिंदी में बात करने का प्रयास करूँगी और मुझे बताया गया है कि बाद में उसका ट्रांसलेशन भी होगा। बात मैं संक्षिप्त में ही रखना चाहती हूँ कि मुझे पता है और भी 2 कार्यक्रम होने वाले हैं और वो बच्चे राह देख रहे हैं कि हम कब प्रस्तुतिकरण करेंगे, और बच्चों के साथ उनकी माताएं भी उत्सुक है कि कब हमारे बच्चे यहाँ प्रस्तुतिकरण करेंगे, ताकि एक बार उनकी वेशभूषा जो है उससे उनको छुटकारा मिले और सामान्य वेश में आकर वो भी आनंद से खेले कूदे। विषय तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, सेविकाओं का योगदान। सबसे प्रथम मैं वंदनीय मौसी जी अर्थात लक्ष्मीबाई केळकर इनको वंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि योगदान देने का अवसर उनके कारण आज हमें मिल रहा है। हम सब जानते हैं 1925 में यानी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई और समाज में जो एक आत्मविस्मृति आई थी, उस आत्मविस्मृति से हिंदू समाज का जागरण करने का कार्य, और भले ही हम विविध भाषा मत पंथ में अलग अलग दिखते हैं, फिर भी हम एक है। यह एक सरल साधा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र डॉक्टर जी ने हिंदू समाज को दिया। परम पूज्य डॉक्टर जी ने यह जो महान कार्य किया, हिंदू संगठन के माध्यम से ही हिंदू समाज का पुनरुत्थान हो सकता है। यह आत्मविश्वास समाज में जो जगाया, वह काम पूरा नहीं होता यदि समाज का आधा भाग यानी महिलाएं इस राष्ट्र कार्य में सहभागी नहीं होती। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि समाज रूपी गरुड़ पक्षी को ऊंचे आकाश में उड़ना है, विहार करना है, तो उसके दोनों पंख सुदृढ़ चाहिए, सबल चाहिए। एक पंख बहुत ही सबल है और दूसरा पंख यदि दुर्बल है तो गरुड़ पक्षी आकाश में छोड़ो पेड़ तक भी उड़ नहीं पाएगा। दोनों पंख के बिना जैसा पक्षी नहीं उड़ सकता है,
वैसे ही समाज के दो परस्पर पूरक अंग जो है, मैं शब्द प्रयोग जानबूझकर और सोच विचार करके कर रही हूँ, मैं समान अंग ऐसा शब्द प्रयोग नहीं कर रही हूँ, मगर परस्पर पूरक जो अंग है स्त्री और पुरुष, जो हमारी संकल्पना है कि पूर्णत्व कब मिलता है, जब ईश्वर भी श्री के साथ आता है। अर्धनारी नटेश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, वैसे ही राम के साथ हम सीता का नामोच्चारण करते हैं, तभी वो पूर्णत्व आता है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरा है, ऐसा हम मानने वाले हैं। तो समाज में यदि इस महिला शक्ति को जागृत नहीं किया तो समाज सबल सुदृढ़ नहीं होगा और ना ही उन्नति के मार्ग के तरफ चल पाएगा। यह सोच वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर अर्थात वंदनीय मौसी जी, इनके मन में आ गई। इन्हें जो वो समाज का एक अवलोकन कर रही थी, तो वह देख रही थी कि जो महिलाएं जिनके अंदर भगवान ने बहुत ही बड़ी शक्ति रखी हुई है, भगवत गीता का आप बहुत लोग अध्ययन करते हैं, ऐसा मुझे ध्यान में आ गया। सुबह से जो हमारी बातचीत हो गई वहाँ से मेरे ध्यान में आ गया कि भगवत गीता का यहाँ बहुत अच्छा अध्ययन होता है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि महिला के अंदर सप्त शक्ति के रूप में मैं निवास करता हूँ, और सनातन धर्म की यह मान्यता है कि स्त्री रूप में ही सारी शक्तियाँ वास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ स्त्री को मान्यता मिलती है या जहाँ स्त्री जागृत होती है, वही श्री का यानी संपन्नता का वास होता है। सारे जो समाज के लिए आवश्यक ऐसे गुण है, यानी क्षात्र शक्ति, बुद्धि शक्ति और श्री की शक्ति, इसको हम स्त्री रूप में ही देखते हैं। कोई भी समाज लक्ष्मी के बिना संपन्न नहीं होता, कोई भी समाज सरस्वती के बिना बुद्धिमान नहीं होता, वैसे ही कोई भी समाज काली के बिना शक्तियुत नहीं होता। आज हमने नाटक में भी वो देखा है। तो ये स्त्री शक्ति का रूप है, मगर स्त्री यह जानती नहीं है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो स्त्री को यह शक्ति आपके अंदर है, इसका एक एहसास दिलाना आवश्यक है। वो कैसे होगा, यह प्रश्न चिन्ह लक्ष्मीबाई केळकर के मन में था। उन्होंने रामायण पढ़ा, उन्होंने महाभारत पढ़ा, उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा, और उनके मन में यही विचार चल रहा था कि जब तक समाज में स्त्री शक्ति जागृत नहीं होती, वो सशक्तिकरण शब्द में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। वो कहती थी कि महिला स्वयं एक ऊर्जा केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, उसको बाहर से सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है, मगर उसको बताने की आवश्यकता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आजकल हम यानी सोशल स्टडीज़ में या सोशल साइंटिस्ट के मुख से भी सुनते हैं कि मल्टीटास्किंग महिलाएं ही कर सकती है। शायद यहाँ के बंधु वर्ग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि घर में जब दूध गर्म करना होता है, तो दूध कितना गर्म करना, तो उसमें उबाल आना चाहिए ताकि वो खराब न हो जाए। उबाल जो आता है दूध में, वो बाहर रखने के बाद भी वो खराब नहीं होता। तो उबाल आने के लिए उबाल इतना आना चाहिए कि दूध ऊपर आए, मगर जो कंटेनर है, जो पतीली है, उसमें से वो बाहर भी ना आए। ये काम यदि घर के पुरुष को दे दिया, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, तो शायद वो सामने खड़े हो जाएंगे और पूरा उबाल आने तक देखते हुए, जब उबाल आएगा तो गैस को, स्टोव को बंद करेंगे। यही काम यदि महिला को बताया
तो वो दूध को उबाल आने के लिए वहाँ रख देगी, और वो जो समय रहता है दूध उबाल आने के लिए, उस समय में बच्चे को नहलाएगी, उसको यूनिफॉर्म पहनाएगी, इधर कुछ सब्जी काटेगी, कुछ ना कुछ घर का काम करेगी, बराबर समय पे जाकर दूध भी बंद करेगी। यही मल्टीटास्किंग है और कुछ नहीं है। मगर ये हमारी शक्ति है, ये एक मल्टीटास्किंग, यानी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह अपने आप में पहचानने की आवश्यकता है, और इस मल्टीटास्किंग को घर के बाहर समाज के लिए भी उसका उपयोग करना है, यह भी महिला को बताने की आवश्यकता थी। ऐसे समय में जब वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर ने संघ की शाखा देखी, केवल बाहर से नहीं देखी, तो उनके पुत्र संघ की शाखा में जाते थे, तो उनमें जो परिवर्तन आ गया था, आपको भी इसका अनुभव आ गया होगा कि जैसे ही बचपन में ही शाखा में जाना आरंभ होता है, तो बच्चों के मुंह में राष्ट्रभक्ति के गीत आते हैं, उनको व्यायाम करना अच्छा लगने लगता है, उनकी भाषा बदल लग जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, बड़ों का सम्मान करना वो अपने आप सीख जाते हैं। तो यह जो एक व्यवहार में, एक शरीर में, मन में जो एक बदलाव आता है, वो बदलाव वो माँ देख रही थी। और परिस्थिति ऐसी है कि उनके पति नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, सारी परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बच्चों की परवरिश भी करनी है, यानी पिता का भी जो रोल होता है वो भी उनको ही करना है। फिर भी उनके मन में विचार चल रहे हैं कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, समाज में जो एक महिला शक्ति है उसको मुझे जागृत करना है, ताकि उस शक्ति के आधार पर समाज की उन्नति और वेग से हो जाए और गति से हो जाए। और जैसे ही संघ की शाखा उन्होंने देखी, तो उनके मन में जो अनेक विचारों के आवर्तन चल रहे थे उसको उत्तर मिल गया, और राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना 11 साल से वर्ष के बाद यानी 1936 में हो गई। तब से लेकर आज तक भारत में और भारत के बाहर भी सेविकाएं इस राष्ट्र कार्य में, समाज कार्य में, धर्म रक्षा के कार्य में अपना योगदान देती आई है, दे रही है और देती भी रहेगी। फिर वो सेवा कार्य है या संगठन कार्य है या एक धार्मिक जागरण का कार्य है, जैसे गीता पाठ हो सकता है या रामायण का पाठ हो सकता है, शायद इसके माध्यम से भी धर्म जागरण होता है, तो उस कार्य में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। संगठनात्मक जो कोर काम है यानी प्रशिक्षण है, सेविका बनने के बाद जो कार्यकर्ता बनने का जो एक प्रवास होता है, उस प्रवास में भी वो अपनी तरफ से पूरा योगदान देती रहती है, और अनेक कार्यकर्ताएं विविध दायित्व लेकर आज पूरे विश्व में इस कार्य में, संगठन कार्य में या हिंदू धर्म रक्षा के कार्य में जुटी हुई है। सेवा कार्य देखेंगे तो मुझे यहाँ भी पता चला कि बहुत सारे सेवा कार्य करने में सेविकाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा यहाँ है वैसा ही भारत में भी है और अन्य देशों में भी है, क्योंकि एक महिला का हृदय ही माँ का हृदय होता है। तो माँ को सेवा करने के लिए किसी और ने बताने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनका मन ही मातृत्व का मन है, मातृत्व का भाव उसके हृदय में है। तो समाज की ओर देखने की उसकी जो दृष्टि है वो माँ की दृष्टि है। तो समाज में जहाँ दुखता है, समाज में जहाँ कष्ट है, समाज में जहाँ सहायता की आवश्यकता है, वहाँ वह दौड़कर पहुँचती है। और इसी स्वभाव के कारण सेवा कार्य में भी सेविकाएं बहुत योगदान देती रहती है। कोई सामाजिक कार्य हो, जैसे सामाजिक कार्य, मैंने उदाहरण में भारत का दूंगी कि जैसे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी और पूरा प्रजाप्रभुत्व जो होता है, लोकतंत्र होता है, वह लोकतंत्र खतरे में था।
तब भी सेविकाओं ने अपने घर परिवार के बारे में चिंता किए बिना सत्याग्रह में भी भाग लिया था। और जब संघ पर पाबंदी थी तब संघ का पूरा नेटवर्किंग जो होता है, यानी संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाना, जो भूगत कार्यकर्ता रहते हैं उनकी सुरक्षा देखना, उनको भोजन पहुँचाना, संघ के जागरण पत्रक जो होते हैं वो विविध सार्वजनिक स्थानों पर पहुँचाना, ये सारा कार्य सेविकाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर किया है। वैसे ही और एक घटना मेरे ही जीवन की है कि हुबली में एक ऐसा स्थान था जो सार्वजनिक स्थान था, मगर वहाँ हिंदुओं को प्रवेश नहीं था। और वहाँ कुछ लोगों ने एक दीवार बनाई थी और वो उस पर क्लेम कर रहे थे कि ये अभी जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की जगह हो गई है। और वह जगह जो थी वह सार्वजनिक, यानी जिसको हम कॉरपोरेशन बोलते हैं, कॉरपोरेशन की जगह थी, तो फिर से उसे एस्टेब्लिश करना कि यह जगह कॉरपोरेशन की जगह है। इसके लिए वहाँ तिरंगा लहराने का कार्यक्रम सोचा गया, मगर तब इतना पुलिस का बंदोबस्त था और संघ के कार्यकर्ताओं पर पुलिस लोगों की इतनी नज़र थी कि वहाँ तक पहुँचना संघ कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मुश्किल था। और यह अच्छा है या बुरा है पता नहीं, मगर अभी भी जब मीडिया में प्रश्न पूछा जाता है कि संघ में महिलाएं क्यों नहीं हैं, तो शायद तब हमारे लिए ये अच्छा ही हो गया कि मीडिया ने हमें पहचाना नहीं था। तो उस समय में हमने वह चैलेंज ले लिया कि हम वहाँ, यानी सेविकाएं वहाँ जाकर तिरंगा लहराएगी और एस्टेब्लिश करेगी कि यह एक सार्वजनिक स्थान है। और वह कार्य सेविकाओं ने करके दिखाया। यानी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सेवा भाव हो, सभी क्षेत्रों में सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया हुआ है। और अभी मैं म्यांमार के कार्य के बारे में बहुत कम जानती हूँ, मगर कल से जो बातचीत हो रही है, जो अपने कार्यकर्ता बहनों से मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे एक अच्छा संदेश मिला है, या ऐसा मैं कहूँगी कि अच्छी न्यूज़ मिली है कि आज जो काम सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ का जो काम चल रहा है, उसमें सेविकाओं की संख्या बहुत अच्छे रूप में बढ़ रही है, शाखाएं भी बढ़ रही है और सेविकाएं दायित्व लेने के लिए तैयार भी हो रही है, प्रशिक्षण के लिए भी जा रही है। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक कार्य पूर्णत्व की ओर नहीं जाता है, वो कार्य आधा ही रह जाता है। तो कोई भी कार्य आधा न रहे, इसलिए महिलाओं ने यानी सेविकाओं ने अपना जो घर गृहस्थी के कर्तव्य है उसको निभाने है ही, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मगर वो निभाते निभाते हमारी जो क्षमता है, जो मल्टीटास्किंग है, या भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बताया कि सप्त शक्ति आप में है, तो उस सप्त शक्ति का उपयोग करते हुए समाज के लिए समय दान करना, इसकी आज बहुत ही आवश्यकता है। कोविड के समय में हमने देखा है कि महिलाओं ने और सेविकाओं ने कितना अपना योगदान दिया, अपने यानी परिवार के बारे में, अपने स्वयं के बारे में सोचे बिना प्रत्यक्ष दहन भूमि में जाकर भी सेविकाओं ने कार्य किया। ये तभी संभव होता है जब अपने मन में समाज के प्रति एक आत्मीय भाव निर्माण होता है कि मैं और समाज अलग नहीं है, समाज के अस्तित्व के बिना मेरा अस्तित्व नहीं रह सकता। जब समाज सुरक्षित है, जब धर्म रक्षित है, तभी मेरी भी रक्षा हो सकती है, तभी मेरा भी अस्तित्व रह सकता है। यह जानकर, यह समझकर हम सेविकाएं संगठन कार्य में, सामाजिक कार्य में, सेवा कार्य में, शिक्षा क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी जो शक्ति है उसे पहचान कर, अपने शक्ति को बढ़ाकर
शाखाओं में हम अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए सीखते हैं, जो हमारे पास है उसी का और कैसे बढ़ाएंगे यही सीखते हैं। तो अपने शक्ति को और अधिक बढ़ाते हुए हम आगे आने वाले दिनों में अधिक सहयोग देंगे। और मुझे लगता है कि जब सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ 80 वर्ष का कार्यक्रम करेगा, तब इस सभागृह वो अपने आप को यानी ये काफ़ी नहीं होगा, बड़ा सभागृह लेना पड़ेगा और उसमें 50% से ज़्यादा सेविकाएं रहेगी। और दूसरी भी ऐसी इच्छा है कि अभी मैं ये सेमिनार देख रही थी तो सारे जो यानी दायित्व लेकर कार्य करने वालों की सूची है उसमें भी सेविकाओं का नाम आएगा, ऐसे विश्वास के साथ। और ऐसा ही आशीर्वाद भगवा ध्वज से मांगते हुए फिर से एक बार सेविका की मातृशक्ति को आवाहन करते हुए मैं अपने विचार समाप्त करती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अलकाता जी ပြောသွားတာကကျမတို့ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသမီးတိုင်းမှာပေါ့နော်စွမ်းအားတွေအများကြီးအစုံပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအားလုံးကိုကျမတို့အသုံးချသွားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Smash အတွက်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုသုံးသွားဖို့အတွက်လိုမယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေကိုအယိုအသေးပေးတဲ့နေရာဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအယိုအသေးပေးတဲ့နေရာမှာအေးချမ်းမှုတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတယောက်မှာလရှမီမလရှမီရောမဆရစတီရောတွေ့ရတယ်လို့မျိုးပဲမလရှမီမဆရစတီမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပြည့်စုံတယ်လို့မျိုးပဲအမျိုးသမီးတွေရှိမှလည်းပဲကျမတို့ Smash ဟာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရာမယန်နေမဟာഭാရတ်တွေဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် Smash မှာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့စွမ်းအားစုဝေးရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာရပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေဟာ multitasking လို့ပြောတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာပဲတော့အမျိုးသမီးတွေဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလုပ်တွေဘယ်လောက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျမတို့အခြားကလေးတယောက်တို့၎င်းဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားတယောက်တို့၎င်းနွားနို့ကိုတဲဖို့အတွက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာမီအားဘယ်လောက်ထားရမလဲဒီကွန်တိန်နာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့နွားနို့ဟာဘယ်အချိန်မှာဆူလာမလဲဆိုတာကိုသူတို့ဟာမတည့်ရပြီးသူတို့ကြည့်နေမယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဒီတာဝန်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာနွားနို့ကိုတဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကတခြားအလုပ်တွေကိုသွားပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတဦးဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလုပ်တွေအများကြီးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရဆိုတာကိုကိုကသိရလိမ့်မယ်နောက်ကျမတို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကနေစပြီးတော့ရှာခါကိုခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဒီကလေးတွေဟာအခြေရဲ့ management တွေဘယ်လိုပုံစံသုံးရမလဲဆိုတာသူတို့သိလာတယ်။နောက်လူကြီးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံအယိုအသေးပေးရမလဲဆိုတာလည်းသူတို့သိလာမယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ Smash မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ပွဲတော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်တွေမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားရမလဲဘယ်လိုအရေးပါလဲပွဲတော်ရဲ့အရေးပါမှုတွေကိုလည်းဒီကလေးတွေဟာဘ ഹു တ္တအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရလာကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကနေစပြီးတော့ရှာခါကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်အရေးပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီစွမ်းအားတွေကိုစုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုရှာခါကိုခေါ်သွားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးစွမ်းအားတွေဟာစုပြီးတော့ကျမတို့လူမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ Smash အတွက်ဆိုပြီးတော့တခုခုလုပ်ပေးဖို့စခဲ့တယ်စေဗီကာစမတီဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံပဲမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယမှာရောတကမ္ဘာလုံးမှာပါစီဗီကာစမတီရှိပါတယ်ဒီ Smash ရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာတော်တော်များများမှာစီဗီကာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အလုပ်တွေကိုမမှုဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နေရာပေါင်းစုံမှာတော်တော်များများနေရာတွေမှာစီဗီကာတွေဟာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစေဗီကာစမတီလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းတွေ့တယ်နောက်ထပ်လာမဲ့အခုဆို85နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်
80ပြည့်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေဗီကာစမတီရဲ့ဥယျာဉ်တွေတိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့စေဗီကာစမတီကိုကြီးတဲ့အချိန်မှာစေဗီကာစမတီဟာအလုံငန်းဆောင်တာတွေကိုတေချာလေးနဲ့စိတ်ဝင်တစားပြီးတော့ကြာရတာဝန်ကနေလုပ်နေတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်စမတ်အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိဟာစမတ်အတွက်အချိန်ပေးပြီးလုပ်နေတဲ့အတွက်ပေါ်မှာဒီစမတ်ဟာလုံခြုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကဟာလည်းလုံခြုံနေမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နမစတေကြီးဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်နံပါတ်9အရာအမြဲဝါစနာကိုစီရီအဂျိုက်ကူမာကြီးဆူလေနဂရမဖတ်ကြားပေးပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာपरम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि अपने देश और धर्म को उद्धान शिखर तक पहुंचाने के लिए संगठित होना अति आवश्यक है। परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि अपने देश और धर्म को उद्धान शिखर तक पहुंचाने के लिए संगठित होना अति आवश्यक है। परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी प्योचा के दिमा मिमिरो ई नाइंगन ने बाधा टेयाओအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့မြင့်တင်ရန်အတွက်စီလုံးညီညွတ်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေသည်ပရမပူဇနီယဒေါက်တာမိုဟန်ဘာဂဝတ်ကြီးပြောကြားခဲ့သည်မှာမိမိတို့၏နိုင်ငံနှင့်ဘာသာတရားကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့မြင့်တင်ရန်အတွက်စီလုံးညီညွတ်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေသည်အမြဲဝါစနာပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်နံပါတ်8ရကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်စကားကိုတနန္တဓမ္မပါလကဟိန္ဒူအဖွဲ့ချုပ်ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးမှူးရှရီဘီဂူလာစီလန်ကြီးခေါ်ဦးစိုးလှိုင်းမှပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမစကာယနေ့အခမ်းအနားစီစဉ်ကိုကြွရောက်လာကြသောအဓိကရီများမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့ပရမဆုတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ယခုလိုဂုဏ်တရားရှိအခမ်းအနားကြီးကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမိတ်ချပေးသောအဖွဲ့အစည်းများယနေ့အခမ်းအနားကိုစီကားကျင်းပရန်အတွက်အမျိုးသားဇက်ယုံအဖွဲ့များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ယနေ့အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက်ငွေအင်အားလူအင်အားနဲ့အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသူများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အစီအစဉ်နံပါတ်9ရစံတချင်းတီဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤစံတချင်းကိုစီရီစာဂါပါလ်ကြီးအောင်လာမျိုးမှတီဆိုပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ जगाना देश है अपना जगाना देश है अपना जगाना देश है अपना जगाना देश है अपना स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है
जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहाँ के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू, ओ सक्रिय भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का। जतन हो संगठित हिंदू, ओ सक्रिय भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो अपना, यही उद्देश्य है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। संगत छिन तीसू पीरे नामा असीजे नंबर 10ရ85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှအမှားစကားကိုကျွန်တော်တို့ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतနိုင်ငံမှာश्री वाडला भगैया जी မှာပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟင်ဒီလိုပြောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာဘာသာပြန်ကိုကျွန်တော်တို့ सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ ज्ञानामू श्री शांतिलाल शर्मा जी မှာဘာသာပြန်ကြားပေးဖို့လေးစားစွာ
မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ सनातन धर्म संघ के स्वयंसेवक संघ के नेशनल संघ चालक मान्यवर बजरंगलाल जी और सहसंघ चालक जी अशोक जी, इस 75 साल के उत्सव का समिति के अध्यक्ष सम्माननीय श्री मुकुंदन जी और सारे माननीय संघ चालक, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता और परमात्मीय श्रद्धेय मातृशक्ति और स्वयंसेवक स्वयंसेविका और हिंदू बंधु, एक बार हम सब लोगों ने इसका जो ध्येय वाक्य है संघे शक्ति कलो युगे, आप सब देख रहे हैं। मैं संगठन में बोलूँगा, आप मुट्ठी बांधकर शक्ति है बोलना, 3 बार बोलेंगे। संगठन में, सब लोग हाथ उठाना, संगठन में, संगठन में। आज म्यांमार के जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। यहाँ के समाज में संपूर्ण समाज को संगठन करने के लिए हिंदू समाज के आधार पर, हिंदुओं के आधार पर 75 साल के पहले जो संगठन शुरू हुआ, उसकी लंबी यात्रा, ए लॉन्ग जर्नी बट सक्सेसफुल जर्नी, यशस्वी प्रयास आज अपने आंखों के सामने है। इसलिए मैं यहाँ के सभी बंधुओं को, माता भगिनी भाइयों और अपने सेलिब्रेशंस कमेटी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस समय में मान्यवर दत्तात्रेय हुस्बले जी सरकार या भारत में, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजे हैं आप सबके लिए। आज ही मेरे से बात किए फिर से। वैसे जगन जी जो हमारे साथ यहाँ काम किए थे, आप कहने के घरों में भोजन किए थे, वैसे जगन जी का भी संदेश आया, सबको मेरा प्रणाम बताना है करके, इसलिए मैं सबको प्रणाम बता रहा हूँ, आपको शुभकामनाएं। आज हमारा दायित्व है, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मंगल सेन जी यहाँ प्रारंभ में संघ का शुरू किया है, श्री राम प्रकाश धीर जी, श्री रामेश्वर जी, श्री वृंदावन जी, आर.सी. पंडित जी और श्री सुब्रमण्यम जी, अभी जो पार्थिवन जी अपने कार्यवाह है, उनके पिताजी रमेश केडिया जी, ऐसे जिन महानुभावों ने अपने जीवन समर्पण किए, उनके सभी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि विनम्रता से अर्पण करता हूँ। और वैसे आज अपने बीच में है, वैसे भीमसेन जी अभी काफ़ी आयु हो गया है, अभी तक बैठे हैं, अभी मैं समझता हूँ गए हैं। श्री जगदीश केडिया जी, ऐसे अनेक लोग जिन्होंने 75 साल से 70 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और अपने बीच में आज भी है, इसलिए उनको मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ क्यों शुरू हुआ, किस उद्देश्य से शुरू हुआ? कि हिंदू सारे दुनिया में है, म्यांमार में भी है, अच्छी संख्या में है, और हिंदू और बौद्ध ये दो एक है। बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, ये धर्म विश्व कल्याण के लिए है। इसलिए विश्व कल्याण अगर होना है, जो मूल हिंदू है वो संगठित होना है और हिंदू के नाते जीना है, केवल कर्मकांड में नहीं। मैं भी अग्निहोत्र किया हूँ, मैं भी तिलक लगाया हूँ, मैं भी भगवद गीता सवेरे पारायण सुना हूँ, वो करना चाहिए, लेकिन वो करते समय
हिंदू के नाते हमको जीना है और संगठित होकर जीना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के मन में था हिंदू समाज संगठित होना चाहिए। सो स्वामी जी ने एक कहानी बताते थे। एक जंगल था और जंगल में शेर रहता है। जो महिला शेर है, सिंह है, वो सिंह घूमता था, घर भी नहीं था, वो छलांग मारता था। कभी प्रसव होने के समय, डिलीवरी होने के समय एक बार छलांग मारी तो उस समय डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा इस बार गिर गया है, माता आगे चली गई। ऐसे बताते हैं सिंह, शेर, द लायन जब प्रसव करते थोड़ा आंख कम दिखते हैं। वो बच्ची जो पैदा हो गई उसको देखे नहीं, आगे चले गए जंगल में। वो बच्चा छोटा वहीं रह गया। अब दूसरे दिन एक बकरी वाला वो जंगल में आया तो दूर से देखा सिंह की बच्चा है, डर गया वो, अरे क्या होगा। लेकिन धीरे से देखा, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, कोई सिंह नहीं है। तो धीरे धीरे वो सिंह बेटा के पास आया। वो कुछ नहीं बोल रहा है, और नजदीक आया, कुछ नहीं बोला, उसके ऊपर हाथ रखा, कुछ नहीं बोला, गोद में लिया, कुछ नहीं बोला। उनको आश्चर्य हो गया और उसको अच्छे गोद में लेकर अपने बकरी के साथ गांव लाया। अब जैसे गांव में आ रहे, अरे लोग लेकर, अरे सिंह है, गोद में है, अरे क्या हो गया, देखने आ गए। ऐसे कुछ दिन हो गया, उसको दूध पिलाया। कुछ दिन होने के बाद वो घास खाने लगा, क्योंकि उनको आश्चर्य लगा। और वो जो सिंह की बच्चा है, मैं बोलने लगा। अरे लोगों को ये क्या हो गया, सिंह की बच्चा है, बड़ा हो रहा है, सिंह है, लेकिन मैं बोल रहा है। लोग झुंड के झुंड गांव से आने लगे, देखने लगे। फिर वो जंगल जाने लगा, बकरी जाते थे और ये भी जाता था, ये भी घास खाता था, फिर वापस आता था। ऐसे 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने के बाद फिर जंगल गए। उस दिन जंगल के ऊपर से और एक सिंह आया, दूसरा कोई। वो दूर से देखा, दूर से देखते ही ये बकरी वाला देखा, वो दौड़ने लगा, बकरी दौड़ने लगा। ये सिंह की बच्चा भी दौड़ने का प्रयास कर रहा था। वो सिंह देखा, अरे आदमी भाग रहा है, बकरी भाग रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे सिंह भाग रहा है, बेटा कैसे भागता है। वो आकर इसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया, वो बोलने लगा, मैं बोलने लगा। सिंह को परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है। तो थप्पड़ मारा। फिर वो बोला मैं करके। इनको समझ में नहीं आया क्या कर रहा। तो एक तालाब थी, तालाब के पास लेकर गया, उसमें दिखाया। देखते ही डर गया पहले वो, फिर बोला फिर देखो, फिर डर गया, फिर देखो बोले। तो सिंह अपने प्रतिबिंब दिखाया, बच्चे का प्रतिबिंब दिखाया। थोड़ी देर के बाद, अरे हम एक है, हाँ। फिर सिंह छलांग मारने लगा, एकदम सिंह बकरी से सिंह हो गया। सो स्वामी जी बताते थे हिंदू बीच के कालखंड में ऐसा हो गया, सिंह के वैसा हिंदू है सिंह, लेकिन जरा बकरी के वैसा मैं बोलने लगा। इसलिए हिंदू फिर से हिंदू बनना चाहिए। हिंदू यानी पराक्रमी, कायर नहीं है। हिंदू यानी त्यागी, भोगी नहीं है। हिंदू यानी सहकारिता रखने वाला, हिंदू यानी प्रेम रखने वाला, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। हिंदू यानी केवल मनुष्य को नहीं, मानव समाज को नहीं, चराचर सृष्टि को प्रेम करने वाला हिंदू है। हिंदू बोलता है तुलसी माता बोलता है, हिंदू बोलता है प्रकृति माता बोलता है। और हिंदू व्यवहार करता है कि सारी दुनिया के अंदर एक भगवान का तत्व है, फिर देश क्यों, भेदभाव क्यों। हम अलग अलग दिखते हैं, वी आर डिफरेंट बट वी आर नॉट सेपरेट। ये हिंदुत्व है, ये संस्कृति है। इससे सारी दुनिया में जो मानव समाज है, जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये सब एक परमेश्वर तत्व के प्रकटीकरण है। दे आर ऑल द मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द सेम डिविनिटी है। इसलिए सारे दुनिया में, सारे सृष्टि में
एक दैवांश है, उस दैवांश को देखने वाला हिंदू है। भेदभाव को देखने वाला हिंदू नहीं है, अहंकार रखने वाला हिंदू नहीं है, ईर्ष्या रखने वाला हिंदू नहीं है, प्रेम करने वाला, त्याग करने वाला, सहकारिता करने वाला हिंदू है। ऐसे हिंदू जब जब था, सारी दुनिया में हमने सेवा किया है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु से गया है, सारी दुनिया में गया है, रक्तपात नहीं किया है, विध्वंस नहीं किया है, प्रेम दिया है, सेवा किया है। मैं जैसे म्यांमार में आता हूँ, अमेरिका भी भेजते मुझे, जाता हूँ। मैं अमेरिका में गया, एक फिनिक्स करके महानगर है, फिनिक्स, उसके नज़दीक में ग्रैंड कैनन्स करके पर्वत श्रेणियाँ हैं। वो पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन्स, जमीन के ऊपर नहीं है, नीचे है। 50 किलोमीटर अंदर, 150 मीटर लंबाई और 50 किलोमीटर चौड़ाई रहता है। मैं देखने के लिए गया, मैं धोती पर था, तो गाइड बताया मुझे देखा, मुझे ये भारत का आदमी है करके, हिंदू है करके, तो बोला उधर देखा वो पर्वत है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मैं हंसने लगा, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अमेरिका में? वो बोले भाई साहब सुनो, 1 बजे दोपहर को अमेरिकन सरकार एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती है, 20 मिनट का, आप देखो। मैं देखने के लिए गया, उसमें बताते उन्होंने, अंग्रेज में वो बताते हैं, लॉन्ग लॉन्ग बैक ग्रेट पीपल फ्रॉम इंडिया दे केम टू अवर कंट्री एंड दे टॉट अस सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दे सर्व्ड अस विद देयर रेस्पेक्ट, वी नेम्ड दिस माउंटेन्स 3 एज ब्रह्मा एंड विष्णु महेश्वरा। देखिए, यानी अपने पूर्वजों ने, विमान नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, सुविधा नहीं था, लेकिन अपने पूर्वजों ने वहां गया है, 3 पर्वतों को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किया है। आज कोलंबिया देश है दक्षिण अमेरिका में, हर घर में गणपति की प्रतिमा, हनुमान की प्रतिमा रहती है, हर घर में। उनको अंग्रेजी नहीं आती है, फ्रेंच बोलते हैं केवल। आप रशिया में गए थे हम 3 साल के पहले अपने सोनी जी, तो रशिया में 500 लोग हनुमान चालीसा का पारायण किए, अत्यंत सुंदर। इन्होंने पूछा आपको कैसे आता हनुमान चालीसा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजियार। देखिए कितना है, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कैसे मनोबल निर्माण करता है। तो लोग बोले भाई साहब आपके सामने 500 लोग हैं, लेकिन हमारे रशिया में 5000 लोग हैं। अरे 5000 हनुमान चालीसा बोलने वाले, पुस्तक देखकर नहीं, सांघिक बोलने वाले, एक स्वर से बोलने वाला, ये कैसे हो रहा है? कारण हिंदू सारे दुनिया में गए हैं। ऐसे हिंदू फिर से सारी दुनिया में डोमिनेशन के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए, प्रेम के लिए, एकात्मता के लिए, निर्माण के लिए जाना चाहिए। ऐसे हिंदुओं का संगठन होना चाहिए। लेकिन हिंदू की क्या हो गया? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, मैं तमिल కొంచెం तिरमारी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं मलयालम थोड़ा जानता हूँ, मैं संस्कृत थोड़ा जानता हूँ, मैं मराठी थोड़ा जानता हूँ। भाषा अनेक है, पूजा पद्धति अनेक है। मैं वैष्णव परिवार में जन्म लिया हूँ, जन्म वैष्णव था, लेकिन मैं शिव का पूजा करता हूँ, मैं अग्निहोत्र करता हूँ, मैं गणपति का करता हूँ, मैं शंकर का करता हूँ, मैं पार्वती का करता हूँ, मैं बालयोगी का करता हूँ। यहाँ है मेरे रिश्तेदार है, वो किसी की पूजा नहीं करते, हाँ, लेकिन वो हिंदू है। इसलिए हिंदू समाज में आज जाने अनजाने भाषा के नाम पर, जन्म के नाम पर, काम के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसे धीरे धीरे अलग होना हो गया है। तो हम दुर्बल हो जाएंगे। जो सारी दुनिया को प्रेम देना है, सारे दुनिया में मानवता निर्माण करना है, सारे दुनिया में द्वेष खत्म करना है, कहीं भी हिंसा टेररिज्म नहीं रहना चाहिए, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, हर एक देश म्यांमार महान अच्छे देश बनना चाहिए, म्यांमार के अंदर सुख से शांति से सब लोग मिलकर जीना चाहिए। ऐसे करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पहले बेसिक जो मौलिक है, मौलिक मूल हिंदू संगठित होना ही चाहिए। इसलिए सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ है।
बाकी स्वयंसेवकों ने जाकर अनेक काम संस्कार साधना वर्ग करते। अभी चित्रलेखन किए, मैं अभिनंदन कर रहा हूं, कितना सुंदर किए। चित्रलेखन सिखाने वाला संघ नहीं है, संघ मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला है, संपूर्ण हिंदुओं को संगठित करने वाला है। और केवल हिंदू नहीं, हिंदू और हमारे बुद्धिस्ट है, हमारे बर्मा के सभी लोग हैं, ये हमारी भूमि है, ये पुण्य भूमि है। वेद में बताते हैं माता भूमि ही पुत्रोहम पृथ्वी। देखिए माता भूमि ही, म्यांमार भूमि हमारे लिए माँ है, हमारे लिए लक्ष्मी है, हमारे लिए दुर्गा है, हमारे लिए सरस्वती है। केवल इतना ही नहीं, पुत्रोहम पृथ्वी, यानी पृथ्वी रशिया में है, चाइना में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, अमेरिका में, उस पृथ्वी का भी हम संतान है। ये वेद है, ये हिंदू है। इसलिए हमने देश के बीच में विद्वेष भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चिंतन में, आचरण में परिवर्तन लाना यह संघ है। इसलिए सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ है। संघ के अंदर जो लोग हैं हमको भी ठीक समझना चाहिए। इसलिए अपनी कार्य पद्धति है। इसलिए सनातन धर्म स्वयंसेवक की आज 80-85 शाखाएं चलते हैं। आज यहाँ कठिन परिस्थिति है, कभी कभी चेकिंग होता है, सब होता है, फिर भी आप लोगों ने खड़े हैं। क्यों? सत्य के लिए खड़े हैं, धर्म के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं, प्रेम से खड़े हैं, मातृभूमि के लिए खड़े हैं और विश्व मानव कल्याण के लिए हम खड़े हैं। ऐसे संघ जो यहाँ चलता है, ये संघ सभी के हृदय में जाना चाहिए। अभी तक पता है अपने लोगों ने ऐसे कैसे होता है? सरल देखिए, 1 मिनट मुझे देखिए, जस्ट सी मी, देखिए तत् ता तत् ता 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 ता, ये आप सबको करना है। सुनिए, दिस वेरी सिंपल, लेकिन सब मिलकर करना महान है। मैं संस्कृत में कुरु बोलता हूं। स्थिति, दोनों हाथ लाइए, सब लोगों ने दोनों हाथ, जस्ट वेट, मैं कुरु बोलता हूं, एक आवाज आना चाहिए, कुरु। हाँ, गड़बड़ है, देखिए। हाँ, कार्यक्रम छोटा, मिलकर करना बड़ा। प्लीज जाके एक बार देखिए, करिए, एक बार देखिए, देखिए प्लीज 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 देखिए, तत् ता तत् ता 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 ता, सब लोग करना। ये करने के लिए मन में संकल्प होना, मन लगना, बुद्धि काम करना, मन बुद्धि मिलकर काम करना, ये संगठित शक्ति है। अब आ जाएगा स्थिति। नहीं 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 नहीं, लो लो, मैं कुरु बोलता हूं। संगठन संगठन, यूनिटी यूनिटी, सावधान, कुरु। थोड़े लोग गड़बड़ किए, देखिए, नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। मिलकर आना, एक ही आवाज आना। ए भाइयों, हाँ, ठीक करना, सावधान, स्थिति, नहीं नहीं। इसलिए हिंदू समाज में व्यक्ति बड़ा है, बुद्धिमान है, लेकिन संगठित शक्ति नहीं है। देखिए, अभ्यास होना चाहिए। ये अभ्यास करना, ये साधना करना, ये सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ है। सावधान, करो। चार लोग गड़बड़ किए, देखिए। हाँ, वो कोने में है, नहीं, देखिए। देखिए, संघ काम कितना आसान है, कितना कठिन है, समिति का काम भी। अभी आखिरी बार करेंगे, नहीं, कुछ युवक है, नहीं, ऐसा नहीं है। सावधान, आप गणवेश में हैं और आप स्वयंसेवक है, आना चाहिए, सबका मिलकर आना ही चाहिए। सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ पब्लिसिटी नहीं है, दिखावट नहीं है, ये साधना है, ये हृदय की ललकार है, हृदय का पुकार है। ऐसे ही हिंदू समाज को संगठित करना चाहिए, आना चाहिए। अभी सावधान, स्थिति, करो। देखिए कितना अच्छा लगता है। ऐसा हमने साधना करते हैं, फिर व्यक्ति से शरीर स्वस्थ हो। आज युवा युवतियां
डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, छोटे आयु में ओबेसिटी है, डायबिटिक है, कैंसर है। क्यों? फालतू खाते हैं बाजार का। घर में माँ बनाती है वो खाना चाहिए, अच्छी भोजन करना चाहिए, माता जी को माँ बोलना चाहिए। ऐसे अपने परिवार में अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। और प्रकृति हमारे लिए माँ है, पानी की रक्षा करना चाहिए, पानी की बर्बाद नहीं करना चाहिए, पेड़ बढ़ना चाहिए, वृक्ष की संपदा की रक्षा करना चाहिए। अपने भारत की गाय हमारी माँ, अपने देशी गाय हमारी माँ है, A2 मिल्क है, उस गाय की सुरक्षा करना चाहिए। और गाय की सुरक्षा से खेती होना चाहिए। म्यांमार के अंदर गांव-गांव में किसान सम्मान के साथ जीना चाहिए, किसान का आमदनी बढ़ना चाहिए, किसान के अंदर जो अच्छे भोजन मिलना चाहिए अपने हम सबको, ऐसे वनस्पति बढ़ाना चाहिए। ऐसे गांव के किसान मजदूर भी सम्मान के साथ जीना चाहिए। इसलिए स्वयंसेवकों का दायित्व है, यहाँ के समाज के बड़े लोगों का दायित्व है, ग्रामीण में जाकर किसान और गाय, किसान और खेती और कुटीर उद्योग, उसके आधार पर म्यांमार के गांव के अंदर युवा भाग जाना नहीं चाहिए मलेशिया को। यहाँ निर्माण करना चाहिए, यहाँ उत्पादन करना चाहिए, यहीं से मार्केटिंग करना चाहिए। ऐसे समाज को सेवा करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ का है। ऐसे काम में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। इसलिए आप सबको फिर से एक बार शुभकामना देते हुए मैं इस म्यांमार की भूमि को विनम्रता से सर झुकाकर प्रणाम करते हुए, सभी ज्येष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, और तथागत बुद्ध भगवान जो अहिंसा के प्रतिमूर्ति सारे विश्व में कल्याण लाने के लिए प्रयास किए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे वचन को विराम करता हूँ। चुनरो माननीय भाग्या जी प्योर मेगो म्यमालो पादा प्यंबे माफे परे उजा पठमा यानी दिखाना मा चौयाव लारे माननीय संघ चालक जी, सह संघ चालक जी, न वरिष्ठ अधिकारी म्या प्रचारक म्या आलोंगो उजा पठमा गारवा पी उन्नो सचाओ न दी देता तिथि का शीरे माननीय संघ चालक जी म्या आलों अनुसांगिक संगठन ये टाउनशिप म्या आलों गोले तुनी ने चनरो गारवा पी उन्नो से बारे चनरो पठमा उजों सिलो मुड़े ए आशी जाऊंगो चनरो आलों तांब्याई चनरो तोंखा चुजो के बारे संगठन में शक्ति है सुबिरो दुनिया ने समाज टकुलोंगो सिलों निन्यू लाजे वोट है चनरो लोंगर ने पाओ खुनसा गाने का निशा बिरो दी चनरो कई सिंगा साटिंगे रे लुप्यो बारे दारुए आलों आ चनरो अम्योदा डू टगु रेने में फिर बाबू डीरा माँ मी खेने अम्योदमी रे आलों ले पावने रे सुरे चांगो प्योचा तो राशि बारे चनरो रिमाशी ने रे मेवाने माशी रे लु आलों बोले चनरो जगन जिया मेरे नुकुन सता रे सुरे चांगो ले डिमा प्योचा तो राशि बारे नौ चनरो मेवाने माँ दी खुनसा गाने खयीजिन तशाउमा मिमी रोये तुए छुए औसा डना अच्छे बाई आलों चनरो पेसा बिरो चनरो दी लोंगे जी खुनसा गाने पी आओ न दी थे खयी से ना आओ चनरो उसां उया प्युखे जा दुमिया टावे खरान सांग के दुमिया ने में टू जिनसी दिमा चनरो प्योप्या द्वारा शिरे तुरो आलों गोले दिया नहीं बुरा उन्यो गारवा प्युरे सुरे चाओ प्योचा द्वारा शिबारे न सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ मा लुंगेरे नेपाल खुनसेगा नहीं बुरा यखु चेंटी स्वयंसेवक प्यसी नहीं जा दुमिया आलों कोजाले गोयु बारे सुरे चाओगो प्योचा द्वारा शिबारे म्यमानेगा मा सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ तना दना धमा पालका अफवा जोवा बाजाओं सा डेंगे राले रे चनरो म्यमानेगे दी बौद्ध बादा नेगे फिटे हिंदू बौद्ध टकुदे फिटे सुरे चांगो तना दना धमा पालका अफवा ने बिदो चनरो आलों ये ट्वेन देमा केवु लाजे बो सुरे यूएचन ने सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ लोंगेगा चनरो दी म्यमानेगे मा सा डेंगे रफे पारे सनातन धर्म स्वयंसेवक संघा लोका अचो सांव्य निरे अतिन टकु फे पारे चनरो स्वामी विवेकानंद जी ने पता है चनरो पोमी लेडो प्योदा राशि रे टोरम्या म्यारो चनरो दी पोमी चाबू डाले में मचाबू रे लुटो म्या अचिन जो ले चनो ने प्योप्या जमारे स्वामी विवेकानंद जी आ तू
ဥပမာလေးတစ်ခုပုံမြင်လေးပြောပြခဲ့ပါရှိပါတယ်တဲ့တခါကားတဲ့ချင်းသေးမတကောင်ကိုဝင်ရှိတဲ့ချင်းသေးမတကောင်ကကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ထွက်ရင်နဲ့သူကသူ့ကိုဝင်ပြက်ကြခဲ့တယ်သူ့ကိုဝင်ထဲကနေကလေးလေးမွေးဖွားခဲ့တယ်ချင်းသေးမကတော့ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြစွာနဲ့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတယ်ဒီမွေးဖွားလာတဲ့ချင်းသေးပေါက်လေးရတဲ့ဒီထဲမှာတောထဲမှာပဲသူကတခါတည်းမျက်မမြင်လေးဟုတ်လားဆဆချင်းမွေးကားစားဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲတောထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့ဆိုဒီတောထဲမှာလာခဲ့တဲ့ရွာသားတအူကဒီချင်းသေးပေါက်လေးကိုသူကချီသွားပြီးတော့တခါတည်းသူအိမ်မှာပြုစုပြောထောင်တယ်ဒါမှကန်ဆိုးကျွန်တော်ရွာသားကလည်းသူ့အိမ်မှာစိတ်တွေမွေးထားတယ်စိတ်တွေနဲ့အတူတူပဲဒီချင်းသေးကိုလည်းသူကကြောင်းတယ်ကြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီချင်းသေးပေါက်လေးကတဖြည်းဖြည်းအစာစားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအစာမြက်တယ်ဒီမြက်ကိုစားတယ်ချင်းစိတ်တွေအော်တယ်လို့ပဲသူကလည်းအခုနကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအတန်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပဲလို့အော်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအော်တယ်ချင်းသေးပေါက်လေးပါစိတ်တွေအော်တယ်လို့ပဲပဲလို့အော်တယ်တနေ့ကျတော့ဒီအရွယ်ရောက်နေတဲ့ဟလာချင်းသေးလေးကတခါတည်းစိတ်တွေနဲ့အတူတူတခါတည်းအစာသွားရင်းနဲ့တနေရာရောက်မှာဂုံပေါ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ချင်းသေးနောက်တစ်ကောင်တောပရင်ချင်းသေးသူကဒီမှာတခါတည်းစိတ်အုံမြင်တော့သူကတခါတည်းအမဲလိုက်ဖို့အတွက်သူ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်သူအမဲလိုက်ဖို့စဉ်းစားဒီအချိန်မှာသူလက်ခါတည်းအတန်ပြုတ်ပြီးတော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေအားလုံးကပြေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့တူရောပြီးတော့ခုနချင်းသေးလေးပါပြေးရောဒီအချိန်မှာချင်းသေးအိုကြီးတောပရင်ကြီးကသူအစာစားဖို့ထက်အခုနချင်းသေးပြေးနေတာကိုသူလှမ်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့မဆိုဒီချင်းသေးကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လုံးလို့ချင်းသေးလေးခင်ဗျာအခုနအော်တာပေါ့စိတ်တွေအော်တယ်လို့ပဲသူခင်ဗျာအော်တယ်ဒီဟာနဲ့ချင်းသေးကြီးကတခါတည်းသူ့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ရေကန်မှာတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ပြန်ရေခဲတန်းမှာကြည့်မင်းမျက်နှာကြည့်မင်းနဲ့ကနေကအမျိုးတူတွေဖြစ်တယ်နော်ငါတို့ကတော့ရဲ့ဘရင်မျိုးရိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ချင်းသေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆွမ်းမီဘေဘေကနန်ကြီးပြောခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကချင်းသေးမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာရန်သူ900ရှိတယ်ဆိုရင်မှအဲ့ဒီရန်သူ900ကိုဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့လူ9000နဲ့အင်အားညီတဲ့ရှက်တိကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါကိုဆွမ်းမီဘေဘေကနန်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါမဲ့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းသေးမျိုးလို့တိမှဟုတ်လားစီးလုံးညီညွတ်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေလုံဆောင်နိုင်မှာဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်ဟိန္ဒူဆိုတာဘာလို့လဲဟိန္ဒူဆိုတာစ조사အားထုတ်သူစီကံကောင်းတွေကိုပို့ချသူယဉ်ကျေးတိမ်မွေးသူနောက်လောကကိုငြိမ်းချမ်းစေသူဟိန္ဒူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေကဟိန္ဒူမဟုတ်လဲတဲ့ဟိန္ဒူမဟုတ်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဖြစ်တဲ့မာနရှိသူမောက်မာသူခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသူအဲ့ဒီလူတွေကဟိန္ဒူမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူတွေကမေတ္တာပေးတယ်ဟိန္ဒူတွေကချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတယ်မတိတဲ့လူကိုလမ်းညွန်ပြတာတယ်လက်ဆွဲခေါ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိသေသလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဟိန္ဒူဆိုတာအောက်ထပ်ပါအချက်လက်များအပြင်စေဝါစိတ်တက်ကမွေးကလေးကပါတယ်စေဝါသူတော်ဘာပရိုက်တာလုတ်ခဲ့စိတ်တက်ဒါကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိန္ဒူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူတွေပဲဒီစိတ်တက်ရှိတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တက်ကတသားတည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပရိုဂျက်တွေ प्रवास တာတဲ့အချိန်မှာနေရာဒေသအသီးသီးကိုရောက်တယ်တောင်အာဖရိကမှာဆိုရင်အိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဂနေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ကြတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကရောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေအားလုံးနူးညံ့တိမ်မွေ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစေ့ချပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဗီဇလေးရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနခင်းနဲ့ညီပြောင်းလဲလာတာနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုဂျာကာလာမှာဟိန္ဒူတွေမှာလူမျိုးခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဘာသာစကားမတူညီတာကိုပဲရှေ့တန်းတင်မှုဆက်စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုကွဲလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတရားလာဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ဟိန္ဒူတွေအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပရမ်ပူဂျီဒေါက်တာကြီးကကျွန်တော်တို့ဆန်းကလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိမြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတားကောင်းယရနာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတားကောင်းယရနာတွေဟာကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတရားလှပလာအောင်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတောင်းဝင်အသီးသီးကိုထမ်းဆောင်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်ကလည်းတူညီမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တူညီရမယ်အခုနစိတ်တူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဒါတွေတူညီဖို့အတွက်လက်ခုပ်အားလုံးအတူတူကြည့်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်တူမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ခုပ်တန်တန်နဲ့ဖြစ်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစမ်းသပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
နောက်စံငလုပ်ငန်းကလက်ခုပ်တီးကြီးရနေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိရှိခဲ့ရတယ်ထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးဗျလက်ခုပ်တီးတာလည်းအခုနပြောတယ်ထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးတီးညီအောင်တီးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒီလိုင်းပဲစံငလုပ်ငန်းကလည်းထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးစံငလုပ်ငန်းမလွယ်ဘူးဆိုတာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခက်လည်းမခက်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စံငလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်တူညီမှရမယ်စိတ်တူညီတဲ့လူတွေပဲစံငလုပ်နိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာလောကသားတွေအများစုကကျွန်တော်တို့စိတ်တကြနေကြတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်စိတ်တကြနေကြတယ်ကျမ်းမာရေးတွေချုပ်ရင်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းစိတ်တက်ကြွလာအောင်နိုးကြလန်းဆန်းကျမ်းမာလာစေဖို့အတွက်လူတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနီးစနစ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှာခါစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှာခါကိုလူတိုင်းသွားကြပါမိမိရဲ့အကျိုးနဲ့အတူလောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှာခါသွားပြီးတော့ရှာခါရဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြပါတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကအသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်များတာမကကျွန်တော်တို့လေယာလုပ်ငန်းမှာလေယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့လယ်သမားကြီးများကိုလည်းစီးအောင်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကသားအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘေးရန်အပေါင်းကင်းဖို့ကျန်းမာလာစေဖို့အဖက်ဖက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမကနဦးစွာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စန္ဒတန်ဒရမ်ဆုံဆိုကလုပ်ငန်းများစထက်တဘိုးထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့စုမုံကောင်းချွေရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါSouthern Utestia. Rava. Sangha Tacha. Pratna. Sarva Mangala Mangalyam. Devim Sarvartha Sadhikam. शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वमङ्गलहेतवे विश्वधर्मैकमूलाय नमोस्तु परमात्मने विश्वधर्म विकासार्थम प्रभो संगठिता वयम् शुभामाशीषमस्मभ्यं देहि तत्परिपूर्तये अजय्यमात्मसामर्थ्यं सुशीलं लोकपूजितं ज्ञानं च देहि विश्वेश ध्येयमार्गप्रकाशकम् समुत्कर्षोऽस्तु नो नित्यम् निःश्रेयससमन्वितः तत्साधकं स्फुरत्वन्तः सुवीरव्रतमुज्ज्वलम् विश्वधर्मप्रकाशेन विश्वशान्तिप्रवर्तके हिंदू संगठना कार्ये ध्येयनिष्ठा स्थिरास्तु नः संघशक्तिर्विजयत्रियम् कीर्त्वार्स्मद्धर्मरक्षणम् परमं वैभवं प्राप्तुम् समर्थास्तु तवाशिष त्वदीये पुण्यकार्येऽस्मिन् विश्वकल्याणसाधके त्यागसेवाव्रतस्यायं कायो मे पततु प्रभो
विश्व धर्म की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। रक्षा उपविश।အစီအစဉ်မပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာအားလုံး